Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter The Cold War Era, and under this chapter, we were discussing the emergence of the two power blocks in the previous class, and we have seen how, with the emergence of two superpowers and with the starting of the Cold War between them, what happened that the whole world started to be divided into two blocks, and this division in two blocks started with Europe. First of all, whole world observed this division in Eastern Bloc and Western Bloc in Europe. The whole Europe was divided into two parts. The Eastern Europe was with the Eastern Bloc, and the Western Europe was with the Western Bloc. And in this regard, we have also seen that military alliances were formed by the superpowers. Like NATO was created, then Warsaw Pact was created by USSR, then CENTO. All these military alliances were done in order to bring more and more countries under their group, their respective groups, है ना. अपने ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज के नंबर को बढ़ाने के लिए सब कुछ हो रहा था. And in this regard, we have also seen कि what happened कि sometimes there may be some countries who were not willing to join the military alliance, but the country is important for superpower. In that situation, military intervention was also done by the superpowers. One of the examples is the military intervention by USSR in Hungary, है ना, 1954 में हुआ था. तो इस तरह की चीज़ें भी होती थी. और इसमें ये एक चीज़ जो हमने डिस्कस किया वो ये भी था कि both the superpowers and the small countries, both these joined military alliances because there were some reasons behind it. There were some reasons for the superpowers in order to form these military alliances. There were some reasons for smaller states to join these military alliances. दोनों के अपने अपने reasons थे, और इसलिए इन reasons की वजह से, इन कारणों की वजह से what was happening कि ये वर्ल्ड का जो डिवीज़न था वो दो पार्ट्स में होता जा रहा था. बट at the same time, some cracks were also seen in this division of the world in two blocks. Like in one of the situations, we have seen that USSR and China, they were not having good relationship, and there was a small war also in the year 1969 between these two countries over the border issue. Okay, so we have discussed all these things, and in this regard, one thing is left, and that is the division of the world into three parts. The first one, the second world, and the third world. ठीक है, first world, second world, third world. अब now the question is, what do we understand by the first world? The first world includes those countries which are capitalist, which are in the group of US, है ना. US के ग्रुप वाले जो कंट्रीज हैं उनको हम फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं. ठीक है. सेकेंड वर्ल्ड किसको कहते हैं? जो कि USSR के ग्रुप वाली कंट्री, यानी कि जहाँ पर कम्युनिज्म है, जहाँ पर कैपिटलिज्म है, दे आर फर्स्ट वर्ल्ड. जहाँ पर कम्युनिज्म है वहाँ वो सेकेंड वर्ल्ड. और थर्ड वर्ल्ड कौन हुए? नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसके बारे में अभी हम लोग वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिनको इंडिपेंडेंस मिली थी, उन कंट्रीज ने क्या किया, किसी को भी ज्वाइन नहीं किया, ना तो फर्स्ट वर्ल्ड को ना सेकेंड वर्ल्ड को, बल्कि उन्होंने एक अपना
अपना ही मूवमेंट स्टार्ट किया विच इज कॉल्ड नॉन अलाइन मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसको ज्वाइन करने वाले जो कंट्रीज थे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्ल्ड का डिवीजन है। यू विल सी इट इज गिवन इन योर बुक, है ना, आपके बुक में ये दिया है किस तरह से जो वर्ल्ड था वो, जैसे कि येलो कलर से फर्स्ट वर्ल्ड को दिखाया है, जिसमें कि पूरी की पूरी नॉर्थ अमेरिका जो है वो उसमें आती है, नॉर्थ अमेरिका में आती है उसमें, और उसके बाद यूरोप का वेस्टर्न पार्ट आता है, देन ऑस्ट्रेलिया आता है, और जो सेकेंड वर्ल्ड है उसमें कम्युनिस्ट कंट्रीज आते हैं, जिसमें कि यूएसएसआर है, एंड ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, चाइना है। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज है उसमें लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज आते हैं, और नॉर्थ अमेरिका में भी जो मैक्सिको है, जो यूएसए के जस्ट नीचे है, वो मैक्सिको भी आपका थर्ड वर्ल्ड में ही आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अब इसके बाद जो हम लोग का एक दूसरा टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर। In the previous classes, one of the classes, in one of the classes I have discussed about Cuban Missile Crisis, है ना, क्यूबा में किस तरह से किस तरह के प्रॉब्लम्स आए, है ना, कैसे वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और उसकी लोकेशन इस तरह की थी जिसके कारण यूएसएसआर के को ये डर लगता था, उसके मन में ये इनसिक्योरिटी आई कि उस पर इन्वेड कर सकता है अमेरिका, एंड देन उसने क्या किया कि उसको अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए उस पर न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल्स रखने स्टार्ट कर दिए, है ना। और फिर अमेरिका को 3 वीक्स के बाद पता चलता है, तो अमेरिका क्या करते हैं, अपने वॉरशिप को बस इतना कहते हैं कि वो उसकी तरफ मोड़ दीजिए, जिधर से यूएसएसआर की शिप आ रही है उस तरफ ही इसको बस इसका डायरेक्शन कर दीजिए। जैसे ही उसका डायरेक्शन इधर देखा, यूएसएसआर वापस हो गया। तो ये हमने जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मिलिट्री फीचर्स क्या थे कोल्ड वॉर के, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलिट्री फीचर, तो वी हैव डिस्कस दिस, है ना। तब हमने इसको डिस्कस किया था कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर होता था सुपर पावर्स का, जिसका एक एग्जाम्पल ये था। अब इसी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को हम एरेनास में भी डिस्कस करेंगे। क्या एरेनास से क्या मीन करते हैं? एरेनास का मतलब ये होता है ना, जैसे कि वो जगह, वो एरिया, वो टेरिटरी जहाँ पर इस तरह के कुछ क्राइसिस आते हैं या वॉर हो जाता है या वॉर होने वाला सिचुएशन पैदा हो जाता है, किनके बीच में, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंसेस मौजूद हैं थे वर्ल्ड में, उनके बीच में क्राइसिस आ जा रहा है, उनके बीच में वॉर हो जा रहा है, उनके बीच में वॉर वाली सिचुएशन पैदा हो जा रही है, थ्रेटनिंग है, लग रहा है कि वॉर हो जाएगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद वो अपने आप रुक जाता है बिकॉज ऑफ रेस्पॉन्सिबल एंड रेस्ट्रेंट बिहेवियर। तो जो ये जो एरियाज हैं, ये जो टेरिटरीज हैं जहाँ पर अलायंस सिस्टम्स जो हैं वो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनके बीच में वॉर हो रहा है या वॉर वाली सिचुएशन आ रही है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट पर जाने के बाद वो रुक जा रहे हैं, इसी को हम एरेनास कहते हैं। वो टेरिटरीज जहां हमको कोल्ड वॉर दिखता है होते हुए, कोल्ड वॉर जो है वो क्या था, इट वॉज नॉट अ हॉट वॉर, राइवलरी वॉज देयर बट वॉर वॉज नॉट देयर। बट ऐसा नहीं कि वॉर बिल्कुल भी नहीं था, वॉर होते थे, छिटपुट वॉर जिसको कहेंगे, शूटिंग वॉर्स, है ना, जिसमें बहुत ही स्मॉल स्केल पे वॉर होता था
खर्चे भी कम होते थे और लॉस ऑफ लाइव्स, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी कम होता था, सारी चीज़ का स्केल लो होता था। इनको हम शूटिंग वॉर कहते हैं। जहाँ तहाँ जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पर जो अलायंस सिस्टम है उनके बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, क्राइसिस आ रहा है, तो दिस इज मैनिफेस्टेशन ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? इन्हीं टेरिटरीज में, इन्हीं एरियाज में हमें कोल्ड वॉर होता हुआ नजर आता है। ठीक है, और जिसका जो एग्जाम्पल है हमारे सामने, जिसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, दैट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, है ना। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हमने ये सब चीजें डिस्कस की कि किस तरह से क्यूबा के लोकेशन के कारण यूएसएसआर और यूएसए आपस में भिड़े तो नहीं, मतलब लड़ाई नहीं हुई, बट लड़ाई जैसे सिचुएशंस आ गए। इसी तरह की सिचुएशन कुछ आए थे कोरिया में भी, कोरियन क्राइसिस। इसमें आपको जो पीरियड है वो याद रखना जरूरी है, किस समय आया था। 1950 से 53 के बीच में। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? 1962 में। ठीक है, इसी तरह से कॉन्गो क्राइसिस भी आया था। कॉन्गो क्राइसिस कब हुआ था? दैट वाज इन 1960s। कॉन्गो, इट वाज इन अर्ली 1960s। इसी तरह से बर्लिन का भी प्रॉब्लम आया था। बर्लिन की जो सिचुएशन आई थी वो 1958 से 62 के बीच में आई थी। तो ये these are some examples of eras of Cold War। अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान में 1979 में यूएसएसआर का जो है इंटरवेंशन होता है। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो हमें देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। और इन टेरिटरीज को, जैसे क्यूबा, कोरिया, कॉन्गो, अफगानिस्तान, इनको हम एरेनाज कह रहे हैं। इसी तरह से वियतनाम में भी हुआ था, है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारे जो इवेंट्स हुए थे, जिस तरह से वहाँ पर कोल्ड वॉर हमें होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो इन्हीं को हम एरेनाज कहते हैं। और जब भी इस तरह की सिचुएशन अराइज होती थी, चाहे वो क्यूबा का हो, चाहे कोरिया का हो, कांगो का हो, अफगानिस्तान का हो, वियतनाम का हो, जब भी ये आपस में जो मिला अलायंस सिस्टम्स थे वो जब आपस में एक दूसरे के सामने नजर आते थे, तो ये वर्ल्ड पीस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता था। और हालांकि हमेशा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये आपस के जो छोटे छोटे जो वॉर थे वो इतना ज़्यादा बढ़ गए कि वर्ल्ड वॉर की नौबत आ गई। ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा एक सर्टेन लिमिट तक जाकर के वो रुक जाते थे, लेकिन वर्ल्ड पीस के लिए खतरा तो पैदा हो ही जाता था। तो जब भी इस तरह के सिचुएशंस आते हैं तो इसमें कई सारे कंट्रीज जो है वो एक्टिव हो जाते हैं ताकि पीस को मेंटेन किया जा सके। जैसे लाइक हम कोरियन क्राइसिस की अगर बात करते हैं तो एट दैट टाइम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिएशन बिटवीन द countries, between the opposition groups was done by Pandit Nehru, who was the Prime Minister of India at that time। तो उन्होंने कोरियन क्राइसिस को रिजॉल्व करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बीइंग अ नॉन अलाइंड कंट्री, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि नॉन अलाइंड कंट्री, नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो स्टार्टिंग होती है उसमें, उसके स्टार्टिंग में जो सबसे एक प्रोमिनेंट लीडर थे वो पंडित नेहरू थे। तो नेहरू ने इसमें कोरियन क्राइसिस को सॉल्व करने में बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था। इसके अलावे
जैसे कॉन्गो क्राइसिस भी हम देख रहे हैं, कॉन्गो क्राइसिस के कारण भी वर्ल्ड पीस को बहुत ही बड़ा खतरा पैदा हो गया था। एंड एट दैट टाइम किसी और ने किया मेडिएशन वर्ल्ड पीस के लिए एफर्ट, और वो कौन थे? वो थे सिक्योरिटी, ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल। अभी आगे के चैप्टर्स में आपको यूनाइटेड नेशंस भी पढ़ने हैं, है ना। तो यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है सेक्रेटरी जनरल। तो उस समय जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने मेडिएटरी रोल प्ले किया था। मेडिएटरी मतलब बीच बचाव का काम। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो क्या होता है, एक कोई भी तीसरा जने आकर के उनके बीच में शांति बहाल करता है, सुलह कराता है ना। तो उसी को हम मेडिएटर कहते हैं। तो उस तरह का रोल जो है वो इन्होंने प्ले किया था। और खुद ही जो सुपर पावर्स थे, दे वर ऑल्सो वेरी मच अवेयर दैट दे मस्ट बिहेव इन अ रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्ट्रिक्टेड मैनर। तो वो खुद ही उसके लिए अलर्ट होते थे कि एक लिमिट पे जाके हमें रुक जाना, उससे आगे नहीं जाना, ठीक है। बट अदर कंट्रीज, अदर इंस्टीट्यूशंस, वो भी बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते थे पीस में को मेंटेन करने में। जो भी थ्रेटनिंग सिचुएशंस होते थे पीस के लिए, उसके लिए वो काफ़ी कुछ एफर्ट करते थे। अब इसमें एक चीज़ और हमारी आती है, वो ये है कि कोल्ड वॉर है, ठीक है। कोल्ड वॉर के कारण, ठीक है, ये तो पता चल रहा है कि ये समझ में आ रहा है कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं कोल्ड वॉर में, यानी कि यूएस एंड यूएसएसआर, दे बोथ आर वेरी मच डिटरमाइंड दैट दे हैव टू अवॉइड थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये तो ठीक है, मान लिया, बट राइवलरी तो है, खतरा है। वॉर का जो खतरा है दैट इज ऑलवेज देयर, कभी भी वॉर हो सकता है। ये दिमाग में, दोनों सुपर पावर के दिमाग में हर समय रहता था कि वो ऐसा कभी निश्चिंत नहीं हो सकते थे कि नहीं वॉर तो होना ही नहीं है। हालांकि दे आर मेकिंग देयर ऑल एफर्ट टू अवॉइड द थर्ड वर्ल्ड वॉर, बट स्टिल they can't think कि वॉर तो होना नहीं है, तो they don't need to prepare for the war। उनकी सिचुएशन ये थी कि वो हमेशा वॉर के लिए अपने आप को प्रिपेयर किए रहते थे, क्योंकि सिक्योरिटी जो होती है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और सुपर पावर्स हैं, राइवलरी तो थी ही, राइवलरी को नहीं रोक सकता था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के कारण सिर्फ वॉर नहीं होना था, जो राइवलरी थी, जो कंपटीशन था, जो टेंशन था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो तो था ही, उसको तो कोल्ड वॉर नहीं रोकेगा, लेकिन हॉट वॉर में उसको नहीं कन्वर्ट होने देगा। लेकिन राइवलरी होने के कारण दोनों ही सुपर पावर्स के मन में एक सस्पिशन बना रहता है, शंका, संदेह, सस्पिशन बना रहता है कि वो जो सुपर पावर है हमारे ऑपोजिट, वो हमारे अगेंस्ट काफ़ी कुछ तैयारी कर रहा है। तो जब हमारे मन में ये डर रहेगा कि जो हमारा ओपोनेंट है वो काफ़ी तैयारी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम भी बहुत तैयारी करेंगे, है ना। तो ये म्यूचुअल सस्पिशन जो है, इसके कारण क्या होता था कि दोनों ही ग्रुप्स ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स रखते थे, क्योंकि इनसिक्योरिटी है उनके मन में, वो उनको एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि हो सकता है उनके बीच में ऐसी बातें हो रही हों जिससे लग रहा है कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, नहीं वो हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये सिर्फ ऊपर की बातें होती हैं। अंदर में क्या है? सस्पिशन है। इस सस्पिशन के कारण हम क्या करेंगे? अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स से भर लेंगे, ताकि हम पे कोई अटैक करने की सोच ही ना सके, है ना। इतना ज़्यादा अपने पावर्स को बढ़ा लिया जाए कि कोई अटैक करने का सोच ही ना सके। तो ये उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी। वॉर नहीं होगा पता है, लेकिन वॉर की तैयारी हमेशा होनी चाहिए। तैयारी इतनी पक्की रखिए वॉर की कि कोई आप पे अटैक करने की सोच ही ना सके, ठीक है। तो ये सुपर पावर्स का एटीट्यूड था towards increasing the arsenal of nuclear arsenal, we can say, other weapons, other missiles, सबको वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। तो ये जो माहौल इन्होंने क्रिएट किया जो सुपर पावर्स ने, तो ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ सुपर पावर्स ही कर रहे थे। एक्चुअली जितने भी कंट्रीज थे
वो सब ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स जमा कर रहे थे, आर्म्स रेस में वो सब जुड़ गए थे, वो सब आर्म्स रेस लगा रहे थे कि हमारे पास ज़्यादा आर्म्स होना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा आर्म्स होना चाहिए। तो ये जो आर्म्स का जो पाइल्ड अप हो रहा था डिफरेंट कंट्रीज़ में, हर कंट्री इतनी ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है आर्म्स पे, इतने ज़्यादा वेपन्स हो रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हो रहे हैं, तो इन सब के कारण क्या था कि एक बहुत बड़ी बात ये हो रही थी कि वर्ल्ड पीस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता जा रहा था। ये बातें अब जो सुपर पावर्स थी उनकी समझ में आ रही थी कि हो सकता है कि हम बहुत ही रिस्ट्रेंड बिहेवियर करें, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करें, स्टिल देयर कैन बी वॉर, स्टिल वॉर माइट अकर। ठीक है, हम कितने भी रिस्पॉन्सिबल और रिस्ट्रेंड बिहेवियर करें फिर भी वॉर हो सकता है। देयर कैन बी मेनी रीजंस, मेनी फैक्टर्स बिहाइंड इट। क्या है वो फैक्टर जिसके कारण इस तरह का सिचुएशन अराइज हो सकता है? हालांकि हम बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड मैनर में बिहेव कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे हैं, फिर भी वॉर हो सकता है। इसके पीछे कई रीजंस है। लाइक ऐसे सिचुएशंस हैं, लाइक एक है कि कोई भी जो दो सुपर पावर्स है उसमें से कोई एक सुपर पावर मिसकैलकुलेट कर सकता है ना, कि कितने वेपन्स हैं हमारे जो ऑपोजिशन में है, उस पावर के पास कितने वेपन्स हैं, इसको लेकर के किसी भी तरह का मिसकैलकुलेशन हो सकता है। मिसकैलकुलेशन मतलब उसके पास एक्चुअली जितने वेपन्स हैं हमें लग रहा है कि उसके पास उससे कम वेपन है। दिस इज मिसकैलकुलेशन। one either of the side can miscalculate the number of weapons in the possession of the other side. other side के पोजीशन में जितने weapons हैं उसको लेकर के मिसकंसेप्शन, कैलकुलेशन हो सकता है। अगर हम मिसकैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? हमको लगेगा उसके पास कम वेपन है, मेरे पास ज़्यादा है, अटैक कर देंगे, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि हमारे पास ज़्यादा है, उसके पास कम है। लेकिन ये हमारा क्या था? इट वॉज अ मिसकैलकुलेशन। और हमें तो ये लगा था कि हम अटैक कर देंगे तो हम उसको हरा देंगे क्योंकि उसके पास तो कम है, हमारे पास ज़्यादा वेपन्स है। बट एक्चुअली जब अटैक कर दिया तो पता चल रहा है कि उसके पास तो हमसे भी ज़्यादा वेपन है, अब वो रिटेलिएट कर रहा है। तो ये मिसकैलकुलेशन कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द full-fledged war between the superpowers, that is the third world war, है ना। तो मिसकैलकुलेशन हो सकता है। इसके अलावा देयर कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग एज वेल। मिसअंडरस्टैंडिंग, इससे हम क्या मतलब निकालते हैं? इसका ये मतलब हुआ कि किसी सुपर पावर ने जो कुछ भी बिहेवियर किया, जो कुछ भी एक्ट किया, उसने कुछ ऐसा सोच के नहीं किया था, बट जो अगला सुपर पावर है उसको ये लग रहा है कि उसने मुझे टारगेट किया है। दैट इज मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन। उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाई सही ढंग से, और जिसके कारण ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण क्या लगा एक सुपर पावर को कि दूसरा सुपर पावर का इंटेंशन गलत है, वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है। और इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग कैन ऑल्सो लीड टू द स्टार्टिंग ऑफ द वॉर, है ना। तो ये तो दो सिचुएशन हमने डिस्कस किया। इसी तरह से क्या हो सकता है, एक और सिचुएशन हो सकता है जिसमें न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इतनी पावरफुल चीज है न्यूक्लियर वेपन्स, उनको काफी सिक्योरिटी में रखा जाता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल, मतलब जिसकी सिक्योरिटी की हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं किस तरह के सिक्योरिटी में उसको रखा जाता है। स्टिल एक्सीडेंट्स तो हो ही सकते हैं ना। एक्सीडेंट के लिए तो कोई किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। और अगर इस तरह का एक्सीडेंट हो गया, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, तो इट विल कॉज ह्यूज लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, है ना। इतना ही नहीं, ऐसे भी सिचुएशंस हो सकते हैं जबकि बाय मिस्टेक, गलती से किसी कोई न्यूक्लियर वेपन को फायर ऑफ कर सकता है ना।
ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं उसका इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं था, बट ओनली बाय मिस्टेक व्हाट हैपेंड दैट समवन फायर्ड ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन, है ना। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ सिचुएशन इन विच बाय मिस्टेक yes, by mistake what is happening that someone fired off a nuclear weapon. ठीक है, इसके अलावा एक और सिचुएशन हो सकता है जिसमें कोई सोल्जर किसी तरह का, जिसको हम कहेंगे कि मिस्चीवियसली वो कर रहा है काम, उसने सोचा नहीं होगा कि हमारे इस एक्ट से इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, बस उसने ऐसे ही मजा करने के लिए ऐसा काम कर दिया जिससे कि कोई न्यूक्लियर वेपन को फायर ऑफ कर दिया गया। तो वो सिचुएशन भी हो सकता है। तो इस तरह के सिचुएशंस को हमें सोचना होगा। ये सुपर पावर्स की सोच थी कि ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं, और इस तरह का कंडीशन अगर होता है तो उसमें वॉर हो जाएगा और उसमें लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होगा। तो इस तरह में क्या किया जाए, कैसे हम वर्ल्ड पीस को सिक्योर करें, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड पीस को सिक्योर करने के लिए तो हम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर कर रहे हैं, स्टिल देयर कैन बी सच सिचुएशंस इन विच वॉर कैन occur, or if war occurs then there will be huge loss of unimaginable loss of human lives। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए अब ये नहीं है, अब हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा। These are the views of सुपर पावर्स। ये क्या एक कदम आगे बढ़ना है, एक कदम ये आगे बढ़ना है कि अब हमको आर्म्स पे कंट्रोल करना है। ठीक है, आर्म्स कंट्रोल की तरफ हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आर्म्स का जो पाइल्ड अप हो रहा था वो सिर्फ सुपर पावर्स ही नहीं कर रहे थे, बल्कि सारी कंट्रीज कर रहे थे, और उसके कारण ये सिचुएशन अराइज हुई कि वर्ल्ड पीस को एक थ्रेट हो रहा था। तो अब इसके लिए आर्म्स कंट्रोल करना होगा। अब ये कंट्रोल जिसकी बात हम कर रहे हैं, इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो ये है कि लिमिट करना, टू लिमिट, और दूसरा है टू एलिमिनेट। ठीक है, लिमिट का मतलब क्या हुआ कि कम करना, जितने नंबर ऑफ वेपन्स को काम किया जाए, है ना, इतने वेपन्स नहीं रख सकते हैं, इस तरह के कुछ हम तरीके अपनाएं। दूसरी चीज जो है उसको कहते हैं एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब खत्म कर देना, कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेपन जो है वो अब कोई रख ही नहीं सकता है, इट इज एलिमिनेटेड। तो ये दो तरीके अपनाने की बात हुई जो सुपर पावर से उनकी तरफ से, कि हम वर्ल्ड पीस को सिक्योर करने के लिए आर्म्स पे कंट्रोल करेंगे और डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल प्लस डिसआर्मामेंट की बात इन्होंने की। और इसके लिए इस पर्पस को अचीव करने के लिए दोनों सुपर पावर्स के बीच में बहुत सारे ट्रिटीज होते हैं। नॉट ओनली सुपर पावर्स, अदर कंट्रीज वर, मतलब स्टार्टिंग जो इनिशिएटिव लिया वो सुपर पावर्स ने लिया, और बाद में उस पर डिफरेंट कंट्रीज ने साइन करके उसको सक्सेसफुल बनाया। आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट के जितने भी एफर्ट्स हुए, और इसमें हम लोग देखेंगे कैसे SALT 1 होता है, SALT 2 होता है, START 1, START 2, देन LTBT, देन NPT, देन CTBT। ये सारी जो ट्रिटीज थे वो होते हैं, उसके जिसका एम यही है कि आर्म्स को कंट्रोल किया जाए, डिसआर्मामेंट किया जाए। कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्म्स हैं जिसके नंबर को लिमिट किया जाए, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वेपन्स हैं जिसको पूरी तरह से एलिमिनेट किया जाए। तो ये जो भी ट्रिटीज हुए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उनको हम लोग
किनके बीच में हुआ, कब हुआ, कब इस पे साइन हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ, all these things we will discuss in the next class.